Most believers ज्यादातर विश्वासी have just learned to beg before God and not exercise their authority. सिर्फ ये सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने आके भीख कैसे मांगनी है, गिड़गिड़ाना कैसे है, लेकिन अपने अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं सीखते। We have to develop spiritual resistance to the enemy. हमें आत्मिक बल सीखना है कि हम दुश्मन का सामना कर पाएं। Devil is not a decent fellow. शैतान सभ्य व्यक्ति नहीं है। He will not go because you request me, dear devil, would you please go? वो इसलिए नहीं जाएगा कि आपने विनती निवेदन किया था, प्रिय शैतान आप प्लीज चले जाएं। He has to be kicked out by force. उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया I जाता है। said he will have to be kicked out by force. मैंने कहा उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता है। He will not tell you what you will eat, what you will not eat, where you will go, where you will not go. वो आपको ये बताने का अधिकारी नहीं है कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं, कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं। Oh, हमें peanut से एलर्जी है। अरे चुप करो ये बकवास। Use your authority and eat the peanut in Jesus' name. Stop all the nonsense and start to eat what God has given. Allergy is just a limitation devil has set on your life. एलर्जी सिर्फ एक सीमा है जो शैतान ने आपकी जिंदगी पे लगाई है कि तुम ये नहीं कर सकते। So this is the fourth part of the series Spiritual Warfare. आज चौथा भाग है आत्मिक मल्लयुद्ध की शिक्षा का। Amen. Amen. And I believe it is a very important revelation that we are going to learn today. और मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। The truth that you will learn today जो सत्य आप आज सीखने वाले हो will empower you to keep devil grounded. वो आपको सशक्त करेगा कि आप शैतान को जमीन पर रखो अपने जीवन में। Amen. The truth that you will learn today जो सत्य आप आज सीखोगे will empower you to live a long life on this earth. वो आपको प्रबल करेगा कि आप इस पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जी पाओ। Will change your narrative from a victim to a victor. वो आपकी कहानी को बदल देगा कि आप बेचारे नहीं, आप शिकार नहीं, आप जयवंत हैं, विजेता हैं। Come on, say I am not a victim. बोले मैं शिकार नहीं हूं। मैं बेचारा नहीं हूं। You're not a victim. आप बेचारे नहीं हो। You're not a victim. आप बेचारे नहीं हो। You are victorious ones in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में जयवंत हो। You are not ordinary people. आप साधारण नहीं हो। Amen. Today I want to teach you about the authority you have in Christ Jesus. आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस अधिकार के बारे में जो मसीह यीशु में आपको मिल चुका है। Each one of you आप में से हर कोई who is born again, जिसने नया जन्म पाया and who has openly declared that Jesus is your Lord, और जिसने सरेआम घोषणा की है कि यीशु मेरा प्रभु है, you have authority. आपको अधिकार दिया गया है। Amen. आमीन। So we are going to learn something and we are going to unlearn many things. सो हम कुछ सीखेंगे और बहुत सी बातों को अपने दिमाग से हटाएंगे, उनको Many अपने जीवन से wrong हटाएंगे। teachings that we have heard over the years which has hindered us to not walk in victory. बहुत सी गलत शिक्षाएं जो हमने कई सालों सुनी जिनकी वजह से हम जय में नहीं जी सके। Amen. And I believe one of the most misunderstood thing when it comes to authority is the teaching of sovereignty of God. और मैं समझता हूं जब अधिकार की बात आती है सबसे गलत शिक्षा जो है जिसको सबसे गलत समझा गया है वो परमेश्वर की स्वेच्छा की शिक्षा है। Many believers don't use their authority because they think God does what he wants to do. बहुत से विश्वासी अपने अधिकार का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। Amen. And that's where they miss it. और यही वो गलती करते हैं। But do you know, as believers in Christ Jesus, you have authority. पर क्या आप जानते हैं मसीह में विश्वासी होने के कारण आपको अधिकार मिला है। But before I take you to scripture, I just want to tell you something. पर इससे पहले मैं आपको वचन में ले जाऊं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Those people who have authority and don't do anything, वो लोग जिनको अधिकार मिला है पर वो उसका कुछ नहीं करते, and those people who are ignorant of their authority, both have the same results. और वो लोग जो अपने अधिकार के लिए अनजान हैं, दोनों के जीवन में एक सा फल होगा। That means if you don't use your authority, that authority is useless. इसका मतलब अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो निकम्मी है, बेकार है। In the court of law,
एक कचहरी में let's take an example. एक उदाहरण लेते हैं. A father files a case that his son was in park and was kidnapped. एक पिता ने केस दर्ज किया कि उसका बेटा पार्क में खेल रहा था, उसको कोई किडनैप करके ले गया. So the investigation started. तो उस पर खोजबीन शुरू हुई. They found out that there were CCTV cameras in the park. उनको मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे पार्क में. And in the park, they saw a footage that the father is sitting on the bench, and in front of him, some gangsters come and they kidnap his son. और वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि वो बाप जो था वो गार्डन में बैठा हुआ था बेंच पर, उसके सामने उसका बेटा खेल रहा था और कुछ गैंगस्टर्स आए उसको उठा के ले गए, गुंडे आए. And in front of him, they took him and he did nothing. और उसके सामने आकर ले गए अगवा करके और उसने कुछ नहीं किया. In the court of law, he will be charged guilty of the crime. कानून की नजर में वो भी उतना ही जुर्म का हिस्सेदार ठहरेगा. The court will say if he was innocent, why didn't he do anything about it? कोर्ट कहेगा अगर इसकी कोई गलती नहीं थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में. Please understand what I'm saying. समझेगा जो मैं कह रहा हूँ. When you don't do anything, when the enemy comes against you and you allow him to do whatever he wants to do, you give him power. जब दुश्मन आपके जीवन के विरोध में आता है कुछ करने के लिए और आप कुछ नहीं करते, उसका जो करना है करने देते हैं, तो आप उसको ताकत देते हैं अपने जीवन के ऊपर. Your ignorance is Satan's bliss. आपकी अज्ञानता शैतान के लिए खुशी का कारण है. He loves it. उसको बहुत प्यार है उससे. He doesn't want believers should know who they are in Christ Jesus. वो नहीं चाहता कि विश्वासी लोगों को पता लग जाए कि वो मसीह में कौन है. Amen. Amen. In fact, can I say that most of the Christians who have made Satan so powerful. बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत से मसीह हैं जिन्होंने शैतान को इतना शक्तिशाली बनाया हुआ है. They talk about Satan, they dream about Satan, they eat about Satan. वो शैतान के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सपने देखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं. So please hear me. इसलिए मुझे सुनिएगा. Your inability to resist the enemy gives him power. शैतान का सामना करने में जब आप असमर्थ होते हैं उस वजह से उसको ताकत मिलती है. You are not people without authority. क्योंकि आप बिना अधिकार के लोग नहीं हो. Pastor, what can we do? पास्टर हम क्या कर सकते हैं? Everything. सब कुछ कर सकते हैं. Stop seeing yourself with the grasshopper mentality. अपने आप को टिड्डियों की तरह देखना बंद कर दो, उस मानसिकता से देखना बंद कर दो. You are not grasshoppers. आप टिड्डियां नहीं हैं. You are the body of Lord Jesus Christ of Nazareth on this earth. आप मसीह यीशु की देह हैं इस पृथ्वी के ऊपर. Amen. आमेन. So let's see Genesis 1:26. I will take you through some scriptures उत्पत्ति 1:26 मैं कुछ आयतें आपको दिखाऊंगा until you are fully convinced जब तक आप पूरी तरह राजी ना हो जाओ that you have authority. कि आपके पास अधिकार है. Amen. आमेन. Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26. Then God said, फिर परमेश्वर ने कहा, let us make man in our image, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार according to our likeness. अपनी समानता में बनाएं Let them have dominion. और वे अधिकार करें. God didn't say, let us have dominion. God said, let them have dominion. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम अधिकार रखेंगे, परमेश्वर ने कहा उन्हें अधिकार रखने देंगे. That means इसका when मतलब God said, let them have dominion, God limited himself in his dominion. जब परमेश्वर ने कहा कि हम उन्हें अधिकार रखने देंगे, इसका मतलब उसने अपने आप को सीमित कर लिया अपने अधिकार में. Amen? Because he gave earth to children of men. क्योंकि उसने पृथ्वी मनुष्य के बच्चों को दी. Do you know who made Satan? आप जानते हैं शैतान को किसने बनाया? Anyone? कोई है? God? परमेश्वर ने. How many people say God? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर ने शैतान को बनाया? How many people have no idea? कितने लोगों को कोई अंदाजा नहीं है? We made Satan, हमने शैतान को बनाया, not God. परमेश्वर ने नहीं. When Adam sold his authority to Satan, he became Satan. जब आदम ने अपना अधिकार शैतान के हाथों बेच दिया, उसको सौंप दिया, तब वो शैतान बना.
God had never given authority to Satan. God gave authority to Adam, and it was Adam who by deception sold it to Satan. परमेश्वर ने कभी शैतान को कोई अधिकार दिया ही नहीं था। परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम को दिया था, और जब आदम ने धोखा खाकर अपना अधिकार शैतान को सौंप दिया, तब उसने शैतान को बनाया। Isn't that crazy? That all the destruction that Satan is doing, he is doing it by using the authority that God gave us. क्या ये हैरानी की बात नहीं कि जो विनाश शैतान कर रहा है उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए कर रहा है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा था। Amen. So the Bible is saying, God is saying, let them have dominion. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें अधिकार करने दो। So God in his sovereignty तो परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा से made man a sovereign being. मनुष्य को सुइच्छा रखने वाला प्राणी बनाया। When God made man a sovereign being, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सुइच्छा रखने को दिया, God also limited himself. परमेश्वर ने खुद को भी एक सीमा में रोक लिया। This is a false teaching that whatever happens because God wants it. ये एक झूठी शिक्षा है कि जो कुछ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है। कैसा? If you believe it, अगर आप ऐसा it मानते is हो going to kill you. तो ये आपको मार डालेगी ये शिक्षा। Because you will take no responsibility for your life. क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे। फिर जो भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. Whatever will happen, something good will come out of it. No, नहीं, नहीं, I'm sorry. माफ कीजिएगा। Some people don't look happy. कुछ लोग खुश नहीं दिख रहे, But I'm not here to make you happy. लेकिन मैं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए नहीं आया। I'm here to train you in righteousness so that you shall live मैं आपको and your generation shall live. मैं आपको धार्मिकता में प्रशिक्षित करने आया हूँ ताकि आप जिएं और आपकी पीढ़ियां जिएं। Amen? Amen. The Bible says it is not God's will that any man should perish. बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य नाश हो। Is that true? Have you read that in the क्या ये Bible? सच है? आपने पढ़ा है बाइबल में? Are people perishing on this earth? क्या लोग नाश हो रहे हैं पृथ्वी पर? Yes. हाँ। That means even though it's God's will that nobody should perish, still people are perishing. इसका मतलब हालांकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी पृथ्वी पे नाश ना हो, फिर भी लोग नाश हो रहे हैं। Amen? How many of you know that there was a time where God wanted you to go in a direction, but you went in another direction? Anybody? Or is it just me? कितने लोगों के जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया कि जब आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि आप एक दिशा में जाएं, लेकिन आप उसकी विपरीत दिशा में गए? कोई है यहाँ पर या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ? Did God force you? क्या परमेश्वर ने आपसे जबरदस्ती की उस समय? नहीं। So God does not control you 100%. सो परमेश्वर 100% नियंत्रण नहीं करता आपके जीवन If पे। God doesn't control you, what makes you think that He controls other people? अगर वो आप पर नियंत्रण नहीं करता तो आपको क्यों लगता है कि वो दूसरों पर नियंत्रण करता है? Have you heard this? God is in control, brother. क्या आपने सुना है परमेश्वर नियंत्रण में है भाई? Did you read that in the Bible? वचन में पढ़ा है कभी? If God was in control, do you think the earth would be in such a mess? अगर परमेश्वर नियंत्रण में होता तो पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा होती? The problem is man is in control. समस्या ये है कि God मनुष्य is in charge, but that in charge gave the control to man. You are in control, not God. समस्या ये है कि मनुष्य नियंत्रण में है, परमेश्वर सब चीजों के ऊपर मालिक है, लेकिन उस मालिक ने अधिकार मनुष्य को दिया, नियंत्रण मनुष्य को दिया। आप हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण। If God was in control and everything was happening which God was wanting, why did He give authority to us? अगर परमेश्वर ही नियंत्रण में था और सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार ही होता है तो फिर उसने हमें अधिकार क्यों दिया? Are you alive? जीवित हैं? Am I talking to the right side of क्या people? मैं सही लोगों से बात कर रहा हूं? See, many Christians don't like this message because it puts responsibility on their shoulder. बहुत से मसीह लोग इस संदेश को पसंद नहीं करते क्योंकि इसके द्वारा जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है। Amen? आमीन। So God gave authority to man. परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य को दिया, Man gave authority to Satan मनुष्य ने अधिकार शैतान को दिया and made Satan the God of this world. और शैतान को पृथ्वी का राजा बना दिया। Then Jesus came, God came as a man. तब यीशु आया मनुष्य के रूप में। Please hear me carefully. सुनिएगा Who ध्यान gave से। the authority to Satan? किसने अधिकार दिया शैतान को? Man, मनुष्य ने, not God. परमेश्वर ने नहीं, Man. मनुष्य ने। So God came as तब परमेश्वर आया man मनुष्य and रूप में snatched it back from Satan और शैतान से छीन लिया वापस वो अधिकार and gave it back to us. और वापस हमें दे दिया।
Let's see the scripture. ये वचन देखते हैं। Matthew 28:18, I'll read from the Amplified Classic Version. मत्ती 28:18 पास्टर एम्प्लीफाइड क्लासिक से पढ़ेंगे उसको। Jesus Yeshu- approached, breaking the silence, and said to them, all authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. यीशु पास आए चुप्पी को तोड़ते हुए और उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Jesus take the authority back यीशु ने अधिकार वापस ले लिया and gave it to his church, gave और it to his body. अपनी कलीसिया, अपनी देह को दे दिया। So who has authority now? किसके पास अधिकार है अब? Who has authority now? किसके पास है अधिकार? Us. But if you don't do anything about that authority, you will live as people who have no authority. लेकिन अगर आप उस अधिकार का कुछ नहीं करेंगे तो आप अधिकारहीन लोगों की तरह जिएंगे। Are you with me? मेरे साथ हैं? Like that father who saw his son being kidnapped and did nothing, उस पिता की तरह जिसके सामने उसके बच्चे को अगवा किया जा रहा था और उसने कुछ नहीं किया उसका, will be held guilty. हम भी उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। Amen? The Bible says give no place to Satan. That means you can give him place. बाइबल कहती है शैतान को कोई जगह मत दो अपने जीवन में। इसका मतलब आप शैतान को जगह दे You सकते cannot हो। say, God, why did you allow Satan? God would say, why did you allow Satan when I gave you my authority? आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर क्यों आपने शैतान को मेरे जीवन में जगह दी। परमेश्वर कहेगा तुमने क्यों जगह दी जब मैंने तुम्हें अपना अधिकार दिया था। तो The Bible tells us, give no place to devil. बाइबल हमें बताती है शैतान को जगह मत दो। Amen? आमेन। Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Let's see, Matthew 10:1. मत्ती 10 उसका 1 देख। We'll read some couple of scriptures and then I'll explain हम कुछ- how we can walk in our authority. हम कुछ आयतों को देखेंगे फिर सीखेंगे कैसे हम अधिकार में चल सकते हैं। Matthew 28:18. Then he called his 12 disciples to him. He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kind of sickness and all kind of disease. मत्ती 10 उसका 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। Amen? You have authority over all kind of demons. आपके पास अधिकार है सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर। And Satan doesn't want you to know that. और शैतान नहीं चाहता आपको ये पता लग जाए। Say, I have authority. बोले मेरे पास अधिकार है। Say it as if you mean it. Say, I have authority. ऐसे बोले जैसे पूरे दिल से मैं जानते हैं इस बात को कि मेरे पास अधिकार है। But just knowing that you have authority is not enough. लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि आपके पास अधिकार है ये काफी। You will have to exercise the authority. इस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखना है। You will have to exercise the authority. इस अधिकार का इस्तेमाल करना है। Imagine there is a policeman कल्पना करें एक पुलिस वाला है and he's given responsibility to guard a bank. और उसको जिम्मेदारी मिली कि वो बैंक की सुरक्षा करेगा And the government has given him authority. और सरकार ने उसको अधिकार दिया And thief come. और चोर आया, They robbed the bank. बैंक में चोरी की, They killed some people. कुछ लोगों को मार दिया। This man does nothing. इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया And they went away. और वो लोग चले गए। And then he calls his headquarters. और फिर अपने हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं He said, why didn't you do anything? और बोला कि अरे आपने कुछ किया क्यों नहीं। Is that right? तो ये सही होगा। They will say, we appointed you. वो कहेंगे हमने आपको नियुक्त We किया, gave you the authority. आपको अधिकार दे Why didn't you do anything? आपने क्यों नहीं किया कुछ। When you move, जब आप कुछ करते हैं heaven moves. स्वर्ग भी साथ में कुछ करता है। When you are silent, जब आप चुप हैं heaven is silent. स्वर्ग भी चुप है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, whatsoever you bind on the earth, the heaven will bind it. जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग भी उसको बांध देगा। You are the legal representative of the kingdom of God. आप स्वर्ग के राज्य के कानूनी प्रतिनिधि हैं। Amen. आमेन। You cannot say, God, when will you do it? आप ये नहीं कह सकते प्रभु आप कब करोगे। Most believers ज्यादातर विश्वासी have just learned to beg before God and not exercise their authority. सिर्फ ये सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने आके भीख कैसे मांगनी है, गिड़गिड़ाना कैसे है, लेकिन अपने अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं सीखते। We have to learn to exercise our authority. हमें ये सीखना है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें।
Amen? आमेन। Is there anybody of you that something was happening to you and it kept happening and you thought it will end and then it kept happening and it kept happening until you realize, what am I doing? क्या यहाँ पर कोई है जिसके साथ कुछ होना शुरू हुआ और आपको लगा अपने आप हट जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन वो होता रहा, आपने कुछ नहीं किया उसका, जब तक आपने ध्यान नहीं दिया। Let me give you a personal testimony. I've acted stupid many times, so I'm teaching you from my failures. मैं खुद की कहानी बताता हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार गलतियाँ की हैं और अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ। So one time, एक बार, one day I got up, एक दिन मैं उठा, I had a little bit of cough. थोड़ा खांसी हो रही थी मुझे, I just ignored it. मैंने नज़रअंदाज कर दिया। Then I saw in the evening it increased. फिर मैंने देखा शाम को वो बढ़ गई, I ignored. मैंने नज़रअंदाज It's किया। just a cough, it will go away. खांसी है, चले जाएगी अपने आप। Just drink ginger tea. जिंजर टी पिया। I didn't know it was an attack against my life. मुझे नहीं पता था मेरे जीवन के विरोध में वो हमला है। I want you to start seeing every sickness as an attack against मैं you. चाहता हूं कि आप हर एक बीमारी को आपके जीवन के विरोध में हमले की तरह देखो। You cannot be casual about the symptoms the enemy sends against you. जो लक्षण आपके शरीर में आते हैं उनको हल्का मत समझो। So one day became 3 days and I thought it is going to go away and it became a week and it became a month. एक दिन के 3 दिन हो गए, मुझे लगा चले जाएगी, हफ्ता हो गया और करते करते महीना हो गया। And it became so bad और वो इतना खराब हो गया that I wasn't able to confess the word anymore because I was continuously coughing. कि मैं वचन भी घोषणा नहीं कर पा रहा था क्योंकि निरंतर मुझे खांसी आने लगी। My ribs used to pain. They became so sore by coughing all night. मेरी पसलियों में दर्द होने लगा खांस खांस कर रात भर। 1 month became 2 months. 1 महीना 2 महीने बन गए, 2 months became 3 months. 2 महीने 3 महीने बन गए And now और अब it was in torment. I was in agony अब मैं सताव में था because my chest, my ribs were paining so bad. क्योंकि मेरी चेस्ट में, मेरी छाती में, मेरी पसलियों में बहुत दर्द हो रहा था। I didn't know what to do. मुझे नहीं पता था क्या करूं। I went to doctor. मैं डॉक्टर के पास गया, They said it's a tropical allergy. डॉक्टर ने कहा ये ट्रॉपिकल एलर्जी है, Started taking nebulizer. नेबुलाइजर लो। Didn't work. काम नहीं करा, Nothing worked कुछ काम नहीं करा, until I went to my roof जब तक मैं अपने घर की छत पे ना गया and I became angry at devil. और मैं शैतान पर गुस्सा हो गया। जाकर I became angry at him. मैं गुस्से से भर गया उस पर And on my roof, I began to shout on the top of my voice. और अपनी छत पर मैं अपनी आवाज ऊंची करके चिल्लाने लगा जितना हो सकता था। I said, Satan, take your dirty hands off my body. मैं कहने लगा, शैतान अपने गंदे हाथ मेरे शरीर से हटा। Nothing was happening in my life for 3 months, and within 30 minutes, all those symptoms went away. 3 महीने से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा था और 30 मिनट के अंदर वो सारे लक्षण चले गए। Do you know God has given us the ability to be angry? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें क्रोध करने की क्षमता दी है। Anger is not bad if you release it on Satan and his demons. और वो क्रोध बुरा नहीं है अगर आप उसको शैतान और दुष्ट आत्मा पर खोलते हैं तो। Do you know God gets angry? आप जानते हैं परमेश्वर Do गुस्सा you know होता है। Jesus got angry? आपको पता है यीशु गुस्सा And the हुआ। Bible says Jesus is sinless. और बाइबल कहती है यीशु बिना पाप के था। Bible says be angry and do not sin. बाइबल कहती है क्रोधित हो मगर पाप मत करो। If you will not be angry at that cancer, if you'll not be angry at that symptom that devil is trying to bring in your body, it's not going to leave you. अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा उस कैंसर पे, उस बीमारी के लक्षण पे जो आपके शरीर पर नजर आ रहा है, तो आपको इसे छोड़ेगा नहीं। If you're not angry at how the enemy is destroying your business, if you're not angry at how the enemy is trying to destroy your kids, he will not go. अगर आप गुस्सा नहीं होंगे कैसे वो आपके व्यवसाय को खराब करना चाहता है, कैसे आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहता है, तो वो जाएगा नहीं। We have to develop spiritual resistance to the enemy. हमें आत्मिक बल सीखना है कि हम दुश्मन का सामना कर पाएं। Amen. Devil is not a decent fellow. शैतान सभ्य व्यक्ति नहीं है। He will not go because you request him, dear devil, would you please go? वो इसलिए नहीं जाएगा कि आपने विनती निवेदन किया था, प्रिय शैतान आप प्लीज चले जाएं। He has to be kicked out by force. उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता I है। said he will have to be kicked out by force. मैंने कहा उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता है। If somebody comes to your house अगर कोई आपके घर में आता है
And you open the door, आप दरवाजा say, खोलते yes, who are you? हैं, बोलते हैं आप कौन है, And they push you and come and sit on the sofa. वो आपको धक्का मारता है कि सोफे पे बैठ जाते हैं. What will you do? क्या करोगे? You say, please, प्लीज चले जाइए. sir, श्रीमान, God, प्रभु, what will you do? क्या करेंगे? What will you do? क्या करेंगे आप? You'll force them out उनको धक्का मार कर निकाल देंगे, because you will tell him, क्योंकि आप बताएंगे this is not your house. ये तुम्हारा घर नहीं है. When demons try to enter in your house, do you know this is your house? जब दुष्ट आत्माएं आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, आप जानती हैं, When they try to bring a symptom, कोई लक्षण लाने की कोशिश don't be करती है, casual about it. तो उसको हल्का मत लो, Don't be casual about it. उसको हल्का मत लो. Jesus said in John 10:10, Satan has come to steal, to kill, and to destroy. He only has one mandate, and that is to steal, to kill, and to destroy. यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है. उसका एक ही कारण, एक ही मकसद है आने का, चोरी, हत्या और नाश करना. Treat no symptom as small or big. You take authority. The moment you feel any symptom of any sickness is trying to enter your body, just become vigilant and say, devil, no, in the name of Jesus. This is my body. I do not allow you to afflict me in Jesus' name. कभी भी किसी भी लक्षण को छोटा या मामूली मत समझना, शैतान को डांटना, उसको अधिकार से कहना, शरीर, मेरे शरीर को छोड़कर निकल शैतान, ये मेरा शरीर है, तेरा कोई अधिकार नहीं. Amen. The quicker you act, hear this carefully. The quicker you act, the sooner that symptom will go. ध्यान से सुनिएगा, जितना जल्दी आप उस लक्षण के विरोध में आएंगे, उतना जल्दी वो आपको छोड़ के भाग जाएगा. If you don't act, अगर कुछ नहीं करेंगे उसका, it will keep on increasing. तो वो बढ़ता जाएगा. Amen. We are people of authority. Say, I have authority. हम अधिकार के लोग हैं. बोले, मेरे पास अधिकार है. And I didn't tell you why I went to the roof. Because when I was praying, और मैंने आपसे नहीं कहा मैं छत पर, बताया कि मैं छत पर क्यों गया था. जब मैं प्रार्थना कर रहा था, and I saw Lord Jesus Christ with a rod in his hand. और मैंने प्रभु यीशु को अपने उनके हाथ में एक राजदंड लिए हुए And देखा. I saw he was very strict. I've never seen him so strict. और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट. डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए आई हैव ऑर्डर्ड सम इंटरेस्टिंग फाइंड्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट. आई गॉट दिस वॉल माउंटेड कटलरी रैक. डेली टूल्स एक जगह, इजीली एक्सेसिबल एंड द किचन फील्स मोर ऑर्गेनाइज्ड. तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट. आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा कमेंट्स में बताना जरूर. स्ट्रिक्टली मुझसे बात कर रहे थे. मैंने कभी उनको इतना स्ट्रिक्ट नहीं देखा. And he said, why didn't you use the authority I have given you? और उन्होंने कहा, क्यों तुमने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था. And he spoke a scripture to me which I had not known at that time. और उन्होंने एक वचन मुझसे कहा जो मैंने उस समय नहीं जाना था. And I want to put Psalm 110 verse 2. भजन 110 उसकी दूसरी He आयत. said, stretch forth your rod out of Zion. उसने कहा, Rule in the midst of your enemies. तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा. तू अपने दुश्मनों के बीच में शासन कर. Rod represents authority. वो राजदंड अधिकार को दर्शाता है. And God is telling you, stretch forth your rod. परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने राजदंड को Stretch बढ़ा, forth your authority. अपने अधिकार को बढ़ा. Tell that wicked thing to get out of your body. उस दुष्ट चीज से बोल, अपने तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाए. Tell that work of darkness to stop in Jesus' name. उस अंधकार के काम को कहे कि वो तेरे शरीर को छोड़ जाए. You stretch forth your rod. तू अपने राजदंड को बढ़ा. You rule in the midst of your enemies. तू राज्य कर अपने दुश्मनों के बीच में. Amen. आमेन. You do it. तू ऐसा कर. Say rule. बोले राज्य कर. Authority is given to rule. अधिकार राज्य करने के लिए दिया जाता है. Rule. राज्य करो.